سچی بات ہے کہ ادارے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، تعلیمی میرٹ بہت بلند ہوتا جا رہا ہے، لیکن تربیت کا بحران اور فقدان اتنا ہی زیادہ ہے۔ سچ کہا تھا جس نے بھی کہا کہ بچے کی گفتار اور اس کا کردار بتا دیتا ہے کہ یہ تربیت کی گئی ہے ان کی یا صرف پالے گئے۔ اللہ کرے کہ ہمارے بچوں کی جسمانی پرورش بھی بہت اچھی ہو، روحانی طور پہ بھی ہم اتنا مضبوط کر جائیں کہ دنیا کے بڑے بڑے تھپیڑے، بہت زیادہ چاروں طرف سے حملہ کرنے والے الہادی حملے، دشمن اندرونی بیرونی مخالفین کو دلیل کی دنیا میں رہ کے ہمارے بچے ہماری زندگی میں بھی جئیں تو ان کے قدم نہ ڈگمگائیں، اور ہمارے بعد بھی اگر اس دنیا میں رہیں، زلزلے آ کے بلڈنگیں گر جاتی ہیں، لوگ دب جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، مگر جہاں کسی کی موت ہو رہی ہوتی ہے وہیں ایک بچے کو قدرت جنم دے کے بتا دیتی ہے کہ یہاں سے نئی زندگی بھی شروع ہو رہی ہے۔ حضرات گرامی، میں محدود وقت کے اندر کوشش کروں گا کہ آپ کو، مجھے بھی، ہمارے بچوں کو بھی، نوجوان نسل کو پیور اور خالص عقیدے کی بنیاد پر کچھ ایسا دیا جائے کہ ساری زندگی جتنے مرضی قیمتی تحفے اور گفٹ اپنے بچوں کو آپ دے دیں، عقیدے سے بڑھ کے قیمتی کچھ نہیں ہے۔ یاد رہے، ایک یہودی بچے کو صرف اور صرف تاریخ لکھتی ہے کہ 5 منٹ بھی پورے میسر نہیں ہوئے تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت ملی۔ سگا باپ سامنے بیٹھا ہے، میرے محبوب نے یہ نہیں دیکھا کہ چلو یہودیوں کا محلہ ہے، یہودیوں کا گھر ہے، ماں باپ یہودی ہیں، بیمار ہے بچہ ہم سے پیار کرتا تھا، چلو اللہ کی سپرد۔ قاسم کے ابو جان نے، عبداللہ کے ابو جان نے اور ابراہیم کے ابو جان نے اس دشمن کے بچے کی بھی خیر خواہی کو سوچا اور ایک لفظ بولا تھا، جملہ، یا غلام قل لا الہ الا اللہ، بیٹے سدا یہاں کسی نے نہیں بیٹھے رہنا، کچھ نہیں لے کے جا رہا، جاتے جاتے ایمان اور عقیدے کی دولت لے جا۔ آپ کے پاس تھا تو آپ نے دیا نا، نہ ہوتا تو۔ اس لیے پہلے ایمان اور عقیدے کی دولت سمیٹیں اور اکٹھی کریں۔ محروم آپ کو کبھی کچھ نہیں دے گا، وہی دے گا جس کے پاس ہوگا۔ میں اگر دیکھتا ہوں اپنے والد صاحب کو تو کروڑوں کی جائیداد کے مالک ہو کے بھی ان کی ڈائری میں ایک بھی جملہ اپنی پراپرٹی کے بارے میں نہیں لکھا ہوا۔ 4 ڈائریاں لکھی ہیں اس سال انہوں نے۔ جس بھی صفحے کو کھولا ہے اسی پہ کوئی نہ کوئی آیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہ کوئی روایت، آپ کا کوئی فعل، آپ کا کوئی عمل، آپ کی کوئی سنت، یعنی قرآن اور سنت سے سینکڑوں صفحات بھرے ہوئے ہیں۔ اور قلم کہاں آ کے رکا ہے؟
3 वाल दिन के बंद हैं, दोनों हाथों में शदीद राशा है, चाय का कप नहीं पकड़ सकते आसानी से, मगर 4 डायरियां लिखी और आखिरी आयत कहां थी कि ये हैं वो लोग कौन जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की बात मान ली, मान नबीयीन, नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ, वह हसुना उलाइका रफीका। जब जहां पहुंचते हैं तो कलम रुक जाता है, जुमे पे चले जाते हैं और वापस आके बेटे को, अपने पोते को कहते हैं कि बेटा ये मेरा आखिरी जुमा है, अगला जुमा शायद मैं आप लोगों के साथ ना पढ़ूं। फिक्रें क्या थी कि बच्चों का अकीदा और ईमान, बावजूद है कि 1 साल नहीं, 2 नहीं, 33 बरस हो गए थे अपने बच्चों की जुदाई देखते। भेजा किस लिए था? हमें अब्बू ने एक दिन भी नहाने का तरीका नहीं सिखाया, एक दिन भी, मगर गुस्ल देने वाले उनके 5 बेटे और उससे ज्यादा पोते खड़े थे। क्यों? कि जिनके पास भेजा था हमें उन्होंने सिखाया था। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का, जो दिल से दिल जलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। अपने इलाके के बच्चों के, कौम के मुस्तकबिल के उस्ताद स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में तालीम देने वाले बड़े हैं, लेकिन सही अकीदे के मुताबिक तरबियत करने वाला कोई 100 में 1 मिलेगा। सबसे कीमती गिफ्ट क्या है? अकीदा। अकीदे में से मैं सिर्फ एक मिसाल आज रजब के हवाले से, 22 रजब कूंडों का दिन, सारी दुनिया जानती है, छुपा हुआ नहीं है। एक बात याद रखना, दुश्मनी में करें या दोस्ती में करें, दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए। मान लेता हूं कि लोगों की दुश्मनी है अमीर मुआविया से, असबाब हैं उसके, दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए। सजना भी टुर जाना हो, इस दुनिया में रहे कभी यार भी नहीं सबने। लेकिन मैं तारीख में देखता हूं कि कूंडे करने वालों के कूंडे हो गए। मेरे रब ने नबी के, पैगंबर के, यारों के भी, असहाब के भी, अहले बैते अतहार के भी, वो मेरे नबी का घराना हो या याराना हो, कयामत तक के लिए इतना कुछ सकी मां का दिफा नहीं करेगा जितने रब ने दिफा करने वाले अफराद उन माओं के लिए, मेरे नबी के बेटों और बेटियों के लिए, मेरे पैगंबर की आल के लिए और मेरे नबी के यारों के लिए, जो ईमान समझ के दिफा करते हैं। और यह सिलसिला इंशाअल्लाह क़यामत तक रहना है। जो मिसाल मैं देना चाह रहा हूं वो है मेराज की। मेराज अकीदा है क्योंकि इसका ताल्लुक मोजज़े से है। मोजज़ा, मोजज़ा कहते हैं कि इंसान जिसके सामने सारी ताकतें रखने के बावजूद बेबस हो जाए, आजिज हो जाए, उठना चाहे तो उठ ना सके, करना चाहे तो कर ना सके, दिखाना चाहे तो दिखा ना सके, अपनाना चाहे तो अपना ना सके। अल्लाह ने हर पैगंबर को उनकी जरूरत के मुताबिक, कौम की सोच के मुताबिक मोजज़े दिए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मोजज़े मिले उनमें एक मोजज़ा इसरा और मेराज का है। क़यामत तक के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी सर जोड़ के बैठे, सारी सलाहियतें सर्फ कर दे। मैंने अपनी होश में जो देखा है और पढ़ा है, साइंस ने सर तोड़ कोशिश की है कि ऐसे तैयारे बनाए जाएं जो तेज तरीन हों,
میری زندگی میں جو آواز سے بھی تیز طیارے آئے وہ کنکڑ طیارے تھے. یہ اس وقت چل نہیں رہے, اجازت نہیں ہے, زمین دوز کر دیے گئے ہیں. کیوں؟ حادثے بڑے ہوئے ہیں, سواریوں کے دل پھٹتے تھے, اموات واقع ہو جاتی تھی, حادثے ہوئے. سائنس نے بڑی بڑی کوششیں کر کے دیکھی, تیز ترین شٹلز بنائی, راکٹس بنائے, لیکن ابھی تک حیران کھڑی ہے کہ قرآن مجید جلائے کیوں جاتے ہیں؟ کہ دلیل سے بات نہیں ہو پاتی, مقابلہ نہیں ہوتا. فوٹو سٹیٹ کر کے نقل کو اصل سے بہتر بتانے کی کوشش تو ہے, لیکن ابھی تک ایسی سواری نہیں بنا سکے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. کہ وہ سواری بنا سکیں جو راتوں رات پل جھپکتے بستر کے گرم ہوتے مکہ سے روانہ ہو کر کے اتنی جلدی بیت المقدس پہنچا دے, لیکن ابھی تلک سائنس پریشان کھڑی ہے. لہذا ہیلے بہانے بناتی ہے. ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے, عقیدے کو سمجھانے کے لیے چند باتیں احباب کی نظر. پہلی چیز, سائنس نے بولا ممکن نہیں. کیسے ممکن ہے؟ کیف. وہ پرانی ابو جہل کی سوچ کہ میرے پاس دنیا کا تیز ترین اونٹ بھی ہے, گھوڑے بھی ہیں, سواری بھی ہے, ہم 1 مہینہ اونٹوں کو بھگا کے, کوڑے مار کے, چھانٹے مار کے پھر جہاں پہنچتے ہیں یہ راتوں رات ہوا ہے. کل اس کی سائنس کو سمجھ نہیں آئی, آج ہماری سائنس کو سمجھ نہیں آ رہی. لہذا وہ کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ نا عالم خواب میں تھا, حالت نیند میں تھا. تو اپنا ایمان بنائیے. مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ دیکھ کے مانے, مشاہدے کے بعد مانے, کانوں سے سن کے مانے یا تجربہ کر کے مانے. مومن کی پہلی شان یہ ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. آنکھ نے دیکھا ہے تو مان لیا تو کوئی بڑی بات نہیں, کوئی بڑی بات نہیں. مشاہدہ کر کے ماننا تو بڑی بات نہیں ہے. ہاتھ لگا کے محسوس کر کے ماننا کہ کوئی ٹھوس چیز ہے, بڑی بات نہیں ہے. خوشبو کو سونگھ کے مان لیا کہ کہیں پھول پڑا ہے تو بڑی بات نہیں ہے. مزہ تب ہے حواس خمسہ میں سے 5 حصے محسوس نہ بھی کر رہی ہوں اور پھر بندہ کہے کہ ہاں ہے. جب ابو جہل کہہ رہا تھا ایک گل دس, اے گل کو بندہ کہے تو بھلا منن والی ہے. صدیق اکبر نے کیا کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مجھے یہ بتا کہنے والا کون ہے. آپ بھی ایمان بنا لیں کہ پتہ کیا کریں کہنے والا کون ہے. کوئی چھوڑنے والا, ہوائی اڑانے والا, جھوٹی بن گھڑت بنانے والا, موضوع کو آگے چلانے والا اور ضعیف یا کمزور یا قصہ یا کہانی پیش کرنے والا کوئی عام قصہ گو تو نہیں ہے. پتہ کر لیں کہنے والا کون ہے. اگر صحیح سند کے ساتھ مل جائے کہ کہہ میں رہا ہوں, سنا میرے مصطفیٰ سے میرے کانوں نے ہے, میں بول رہا ہوں کہ میرے آقا نے بولا اور میں نے سنا ہے, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا میرے آقا نے یہ کیا ہے, محبوب موجود تھے, آپ کو اطلاع دی گئی کہ ایسے ہوا ہے, محبوب اس پہ چپ ہو گئے یا ایکشن اور ری ایکشن دیا, تو فوری کہہ دیں کہ حق ہے.
सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने पूछते हैं कहने वाला कौन है? कहा जिदा कलमा पढ़े ही। बेटा तार को ना ज्यादा छेड़े, जिसका कलमा पढ़ा है। तो सिद्दीक अकबर ने क्या कहा था रज़ी अल्लाह ताला ने? कहने लगे कैसी बात करता है अबू जहल, ये तो बड़ी मामूली सी बात है, हम तो इससे उनकी बड़ी बड़ी बताए हुई बातें मान रहे हैं। इनका नाम क्या पड़ा था? सिद्दीक। तस्दीक की थी। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश करना चाहता हूं, कभी मौजू लीजिए, टॉपिक लीजिए, जुमे में लाइए, खुतबे में लाइए, थीसिस लीजिए, एमफिल में पीएचडी में इस उन्वान को लीजिए, बाकी जिंदगी में इख्तियार कीजिए कि क्या सिद्दीक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ इसरा और मेराज ही की तस्दीक करवाई थी या की थी? कहते हो ना सिद्दीक अकबर। सिद्दीक ने जितनी भी तस्दीकें की हैं सारी बरहक हैं। सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूं। महबूब इस दुनिया से चले गए, उनकी बेटी के घर में थे, कुबा के करीब सुन से चल के आए, बेटी से इजाजत मांगी, अंदर दाखिल हुए। मेरे महबूब के जस्दे अतहर के ऊपर चादर थी, चेहरे से हटाई, आंखें खोली और देखी और माथे पे बोसा लिया और क्या कहा था? तिब्ता हय्यम व मय्यता, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। महबूब आपकी जिंदगी जितनी पाकीज़ा थी उतनी मौत भी पाकीज़ा है। फिर मस्जिद में दाखिल हुए, जनाब उमर जर्रार तलवार पकड़ के खड़े हैं कि जिसने कहा कि मेरे महबूब वफात पा गए हैं, गर्दन उड़ा के तन से जुदा कर दूंगा। और जब सिद्दीक ने खुतबा पढ़ के वो आयतें पढ़ी, उमर जर्रार के हाथ से तलवार गिरी और खुद भी गशी खा के गिरे और सिद्दीक की तस्दीक को मान के कहा कि हां नबी फौत हो गए रज़ी अल्लाह ताला। है ना पता? इस पे भी लड़ाइयां रहेंगी। मेराज को माना है सिद्दीक की तस्दीक से, इसरा को माना है जनाब सिद्दीक की तस्दीक से, तो फिर पैगंबर की वफात को भी तस्लीम कर तस्दीक करने वाले वही सिद्दीक हैं। उधर ना माने तो अबू जहल। सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तस्दीक के बाद भी नहीं माना तो क्या बन गया? अबुल हकम अबू जहल बन गया। कभी मैं भी खुद को समझाऊंगा कि अगर यह मौकफ ना माना तो मेरा क्या अंजाम होगा। पैगंबर को दफन कहां होना चाहिए? हर बंदा चाह रहा था कि हुजूर का जस्द अतहर ये शरफ मिले मेरी पैली को, मेरी जमीन को, मेरी जगह को, मेरे घर को। मदीने का एक एक मजरे का मालिक कोशिश कर रहा था कि मैं पूरी जमीन वक्फ कर दूंगा कब्रिस्तान के लिए, हुजूर का जस्द अतहर मेरी जमीन में आने दो। तस्दीक किसने करी थी? जनाब अबू बकर सिद्दीक ने कि मैंने महबूब से सुना था, मेरे इन कानों ने सुना था, वक्त का पैगंबर जहां वफात पाता है वहीं पे दफन होता है। क्यों भाइयों? पूरी उम्मत ने जनाब अबू बकर सिद्दीक की इस तस्दीक को माना कि नहीं? आज भी कब्र उसी हुजरे में है कि नहीं? तो फिर मर्जी का ले लेना, मर्जी की तस्दीक मान लेना, जहां अपनी मर्जी की नहीं है वो छोड़ देना, फिर सिद्दीक सिद्दीक नहीं रहते। तो इस रवैये पे भी नजर सानी कीजिए, ईमान का हिस्सा है। आगे बढ़ रहा हूं। टेक्नोलॉजी ने पूरा उरूज देखा है, चांद पे, सितारों पे, कहकशाओं पे कमंदे डाल के बैठ गई है। कोशिश कर रही है कि तेज तरीन सवारी तो नहीं बन सकी, मेराज पे जाने वाली जो ऊपर को लिफ्ट गई थी उस लिफ्ट जितनी तेज लिफ्ट ही बना ले। पता है हमारी बिल्डिंगों में आजकल जदीद तरीन लिफ्ट्स आई हुई हैं और सबसे तेज तरीन जिन बिल्डिंगों में लिफ्ट इस्तेमाल हुई है उनमें एक बुर्ज खलीफा भी है। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी भी बच्ची है, अभी साइंस भी बच्चा है। कुरान जो आज से 1457 बरस पहले इसका नुज़ूल शुरू हुआ था, जो कह दिया बरहक
की हिम्मत नहीं है, अभी टेक्नोलॉजी वहां तक नहीं पहुंची, लिहाजा जो बात समझ में नहीं आती इनकार कर देते हैं, कहते हैं जी मेराज मुमकिन ही नहीं हुआ। कैसे हो सकता है कि इतने रास्ते में जून आते हैं, उनको क्रॉस करके वहां तो बंदा बेवजन हो जाता है, अमवात हो सकती हैं, बंदे का कुछ बचता नहीं। ये 500 साल की मुसाफत जो है वो पल झपकने में, एक आसमान फिर दूसरे की फिर तीसरे की, 7 आसमानों तलक जाते हुए 3000, एक दो दिन की बात नहीं है, इतने सालों की मुसाफत पल झपकते हुए कैसे मुमकिन? मेरे बेटो ईमान बना लो, दुनिया के किसी कॉलेज में पढ़ो, यूनिवर्सिटी में पढ़ो, साइंस का कोई सब्जेक्ट रखो, कोई भी टीचर हो, कोई उस्ताद हो, सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है हम लोगों का। ये किताबों से पढ़ के पढ़ाएंगे, और जो हम पढ़ा रहे हैं ये हमारे महबूब दिल बनाने वाले का आसमानों से उतारा हुआ सबक दिल से पढ़ा के गए। तो सामने से मुस्कुरा के पढ़िएगा, सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दी। अगर कोई बंदा कहे कि बलगल उला बिकमालिही, दाद मिल जाए, पैसे मिल जाए, नोट लग जाए, दुनिया पलाट ले दे, मस्जिद खरीद के बनवा दे, नाम करवा दे, मदरसे इदारे चला दे, पूरी नस्लों के जिम्मे उठा ले कि आवाज में लहन बहुत है, लेकिन कुरान कहता है कि तेरे ये जुमले खुद के बनाए हुए हैं। रहमान कह रहा है सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दी, हवाओं में उड़ाया तो सुबहान ने, मेराज करवाया तो रहमान ने, बुराक को भेजा तो अल्लाह ने, सूरतें दी तो अला कुल्ली शैइन कदीर ने, बलगल उला बिकमालिही, अपने कमाल की वजह से जो है वो महबूब इसरा पे नहीं गए, बल्कि रब्बे जुल जलाल के करम की वजह से गए। सारी दुनिया की सोच अपनी हो सकती है, गलत हो सकती है, सही भी हो सकती है, कुरान और रहमान की बात गलत नहीं हो सकती। अकीदे का हिस्सा बना लें। ये 4200 मजहब और फिरकों की मौजूदगी में मैं ये बात कर रहा हूं इस वक्त वर्ल्ड में ऑन द रिकॉर्ड रजिस्टर्ड जो इज्म है 4200 इज्म, और उनके दरमियान कुरान पिच पे खड़ा है। सुबहान। दुनिया में जो लिस्ट बनी है ना बुराइयों की, खामियों की, कमियों की, कोताहियों की, रज़ाइल की, बुरे अखलाक की, बुरी सोचों, बुरी फिक्रों, बुरे नजरों, बुरे आमाल की, उन बुराइयों का ताल्लुक सर के बालों से हो या जुल्फों से, इंसान की जिल्द से हो या दिमाग की सोच या भेजे से हो, गलत सोच और ताल्लुक और बुराई का ताल्लुक आंख से हो या कान से हो या जुबान से हो, लोगों वो होठों से हो, वो गर्दन से हो या कंधों से या हाथों से या उंगलियों से हो, वो सीने से हो या दिल से हो या पेट से हो, ताल्लुक शर्मगाह से हो या रानों से या गोद से हो या घुटनों या टखनों या पिंडलियों या रानों या कदमों से हो। 1000 के करीब लिस्ट बनाई है लोगों ने जिन्होंने गुनाह लिखे हैं। बाज ने 500 में शार्ट किया, बाज ने 300। दुनिया में जितनी बुराइयां लिखी जा सकती हैं, सोची जा सकती हैं, सुबहान, तेरा रब पाक है, वो तेरे रब में नहीं है। हर ताकतवर कमजोर हो सकता है, तेरे रब में कमजोरी नहीं है। सुबहान। हर पैसे वाले का पैसा लुट सकता है, तेरे रब के खजानों पे किसी का शब खून नहीं है। सूरज की ताकत सोलर पैनल बनके पूरी दुनिया की गाड़ी और पहिया और चक्का चला सकती है, सूरज बेनूर हो सकता है, मगर तेरे रब के अंदर यह कमी नहीं है। चांद की रोशनी छिन सकती है, आसमान लपेटा जा सकता है, सितारे झड़ सकते हैं, समंदरों में आग लग सकती है, सहरा वीराने में बदल सकते हैं, पहाड़ों की रुई बन सकती है। सुबहान।
मगर तेरे रब के पास ये कोई मसला नहीं है कि तेरे रब को कोई चैलेंज करे, वो ताकत इतनी है, लिहाजा उसके बारे में मनफी सोच मत रख, संभाल के रख अपनी साइंस को, संभाल के रख अपनी टेक्नोलॉजी को, संभाल के रख अपने फलसफे को, संभाल के रख चूंके चुनाचे अगरचे मगरचे को। सुबहान जब करवाने वाला सिर्फ कौन कह दे तो फिर वो हो जाता है। ताकत इतनी है कि वो हो जाता है। और भाइयों मैं थोड़ी सी यहां ताकत दिखा दूं, तेरे रब ने सिर्फ कौन कहना है, मता युमर बिन्नफ़ख़ फ़यन्फ़ुख़ु फ़ीह। महबूब जब मेराज से वापस आए ना, तो लोगों ने सोचा कि आपके लिए कोई नरम सा बिस्तर बना दें। मैं यहां यह भी सबक पढ़ा दूं, 4 दिन साडा कोई नौजवान बाहरों आवे ना यूरोप चों, उसे कामों की के बाजार अच्छे नहीं लगते, पंजाब बुरा लगने लगता है, पाकिस्तान में 100 नुक्स निकलते हैं। ये पानी जिस पे पला था, फिर कामों की दा पानी भी माड़ा लगन लग पैंदा है। बाहर दियां बोतलां लैके कंपनी दियां वो घुट भरदा। माशाल्लाह फर्नीचर चेंज हो जाता है, आ यार पुराना स्टाइल है, मैं वेख आया, मैं बाहरों मैं वो लवाना है। फिर बाहर से ऑनलाइन ऑर्डर देके चीजें मंगवाता है, टिकता नहीं है, पांव नहीं लगते, इंपोर्टेड चीजें। अब मैं लोकल नहीं जो कुछ यूज करनी। यार हुजूर भी तो मेराज से लौटे थे, एक दिन तो दसो अपनी मंजी बदली हो, चटाई पे लेटे थे, जिस्म पे निशान पड़ गया, यार रो पड़े, कहने लगे महबूब जाली बादशाह हैं, नरम गरम गद्दों पे लेटते हैं, तो आपके लिए हम ना कोई नरम सा बिस्तर बना दें। सहाबा ने कहा आपने खुद नहीं, पता जवाब क्या दिया था? फरमाया कैफ़ अनअम, और मुझे आसानियों के मशवरे देने वाले यारों, मैं इनाम और इकराम और नेमतों की जिंदगियों में खुद को कैसे लगा दूं, हालांकि मैं मेराज में देख करके आया हूं, वह साहिबुल कर्न का दिल तक अमल कर्न, जिस फरिश्ते को रब ने ड्यूटी लगाई है, उसने सूर अपने मुंह में सींग जो है वो रखा हुआ है, वस्तमा अल इज़्न, कान लगा के अल्लाह के हुक्म और इजाजत के, कब अल्लाह ऑर्डर दे, मता युमर बिन्नफ़ख़ि फ़यन्फ़ुख़ु फ़ीह, कब अल्लाह कहे कि फूंक दे और वो फूंक मार दे, अल्लाह कुन कह दे। एक फरिश्ते की फूंक में इतनी विंड पावर है। आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ी पावर पानी की सुनामी की नहीं है, आग के शोलों की नहीं है, हवा की पावर है, जमीन के जलजलों की भी नहीं है। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, बरहक है 1700 बिल्डिंगें गिरी हुई, अफराद दबे हुए, मरे हुए, लेकिन एक फूंक, सिर्फ एक फूंक तेरे रब की बनाई हुई मखलूक की लगेगी, पहाड़ रुई बन जाएंगे, इंसान पतंगे बन जाएंगे, सूरज का पूरा मदार निजाम शम्सी दरहम बरहम हो जाएगा, ब्लैक होल में समेट लिए जाएंगे, शापरों में लपेट लिए जाएंगे, जमीन को लपेट के आसमानों को लपेट लिया जाएगा, पूरा सिस्टम दरहम बरहम हो जाएगा। ये है एक तेरे रब की मखलूक की पावर जो तेरे रब ने बनाई है। तेरे रब की ताकत कितनी है, सोचे वहां नहीं जा सकती। लिहाजा मनफी मत रखिए, इन्नहु हुवस समीउल बसीर, जो तुम बोलोगे वो सुन रहा है, जो तुम करोगे वो देख रहा है। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दी, इसरा करवाने वाला अल्लाह है। कौन है? लिहाजा मेराज जब भी बयान करो, नबी की शान बयान करना, मोजज़ा बयान करना, मगर बलगल उला बे कमाल ही कह के नहीं, वह अम्मा बिनेमति रब्बिका फहद्दिस, रब की नेमत और जो है अल्लाह की अता और रब की वही समझ के बयान करना, सुबहान से जोड़ के। जो इसरा और मेराज बयान नहीं हुई तो फिर समझ ले कि तेरा वो फलसफा तो हो सकता है, तेरे अदीब का अदब तो हो सकता है, खतीब की खिताबत तो हो सकती है, वो सहरे बयान तो हो सकता है, वो जादू तो हो सकता है, मगर हक और हकीकत नहीं हो सकती। लिहाजा हक क्या है? अकीदा तौहीद के करवाने वाला रहमान है। असरा, अगर आपने बाबे इफ़आल का खासा पढ़ा हुआ है
تو کب استعمال کریں گے؟ اسی موقع پہ کریں گے. پڑھیں ذرا اس کو کہ اس کے خواص کیا ہے. بے عبد، بے، یہ جملہ بھی پورا عقیدہ ہے. کیا ہے عقیدہ؟ عابد اور ہے، معبود اور ہے. معبود اسرا کروا رہا ہے اور عبد اسرا پہ جا رہا ہے. یہ ساجد ہیں، وہ مسجود ہیں. وہ رب ہے، یہ مربوب ہے. وہ اللہ ہے، یہ محمد ہے. بے عبد ہی. اور عبد رہتا ہے، وہ الہ نہیں ہوتا. عقیدہ بنائیں اور بدلیں. اس سوچ کو بدلنا ہے تو سوچ بدلیے کہ جس میں کہا گیا کہ وہی جو مستوی تھا عرش پہ الہ بن کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کر. بھائی نہیں، اتارنے والا اور ہے، اترنے والا اور ہے، لے جانے والا رب ہے، رحمان ہے، سبحان ہے. جانے والا آمنہ کا لال ہے. بے عبد ہی. اور یاد رہے کہ پیغمبر کو اسراء اور معراج دنیا کا سب سے بڑے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے. مانتے ہیں؟ سائنس بے بس ہے. تو پتہ کیا چلا کہ اللہ کی سب سے بڑی افضل اور اعلی مخلوق ہے تو صرف انسان ہے. اشرف المخلوقات کا رتبہ ٹائٹل کس نے جیتا ہے؟ فرشتوں نے، جبریل امین نے، ملک الموت نے، اس کے آوان نے. نہیں، اشرف المخلوقات کا رتبہ. اگر آپ پیغمبر کو عقیدہ اسراء اور معراج کے بعد بشر نہیں مانتے تو تھوڑا پڑھ لیں، تھوڑی غور کر لیں، تھوڑی سوچ اور فکر کے اندر ذرا ریسرچ ڈال لیں. کوئی حرج کی بات نہیں ہے. صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے کہ سب سے بہتر، اشرف، اولا، اعلی، اکرم، عزت میں، احترام میں، وقار میں، رتبے میں تو انسان ہو، بشر ہو، لیکن رسول بشر نہ ہو تو پھر مطلب کیا ہے؟ کل کے ماضی کے بڑے سارے وڈیرے کہتے تھے کہ رب نے نبی بشراں چوں چننا سی. ان کا موقف تھا بشر نبی نہیں ہو سکتا. تو ساڈے ویریاں نو یہ سمجھ آئیے کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا. وہ کہتے تھے بشر نبی نہیں بن سکتا. ہم کہتے ہیں کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا. تو پھر آپ پیغمبر کو افضل نہیں مان رہے، آپ افضل کسی اور مخلوق کو قرار دے رہے ہیں. اللہ کی ساری مخلوقات میں افضل کیوں کہتے ہو کہ جہاں جبریل کے پر جلے؟ کیوں بیان کرتے ہو کہ سدرۃ المنتہا میں انتہائی ہو گئی، جہاں جبریل کو رکنا پڑا، جہاں نوری مخلوق کی بریکیں لگ گئی، وہاں سے تو بشر کی پرواز شروع ہو رہی ہے اور پیغمبر بشر نہیں ہے. سبحان الذی اسری بعبدی. اللہ جتنا مرضی اونچا رتبہ دے دے، بندہ بندہ ہی رہتا ہے. اور یہی شان بندگی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. کبھی بھی رب شان زیادہ دے دے، رتبہ دے دے، بندگی سے زندگی کو مت نکالنا. تیرے پیغمبر نے معراج سے لوٹ کے انہی چٹائیوں پہ، انہی مسلوں پہ، انہی بستر پہ، انہی لوگوں میں وہیں پہ نیچے بیٹھ کر کے ایک دن بھی اپنی زندگی کا سٹینڈرڈ چینج کر کے یہ نہیں کہا میں جنت جنم ویکھی جے. انہی لوگوں میں بیٹھتے تھے، وہی انداز تھا، وہی محبتیں تھیں، وہی پیار تھا. تو یہ بھی معراج اور اسراء کا سبق ہے. یہاں تاریخی حوالے سے ایک گزارش کر دوں، ابتدا میں ذہن صاف ہو جانا چاہیے. مورخین نے لکھا ہے کہ اسراء الگ ہے، معراج الگ ہے. تو یہ بھی نقطہ درست کر لیں. کہتے ہیں کہ اسراء 5 نبوی میں ہوئی تھی. جب وحی کو اترے 5 سال ہو گئے تھے، نبوت ملے 5 سال. جن ایام میں ہجرت حبشہ ہو رہی تھی انہی دنوں میں پیغمبر کو اسراء ہوئی ہے. اور اسراء بیت اللہ سے بیت المقدس تک ہے قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق. اور جو معراج ہے وہ آپ کو ام ہانی کے گھر لیٹے ہوئے تھے. سیدہ ام ہانی حضرت علی کی سگی بہن ہے، جناب ابو طالب کی بیٹی ہیں. آپ ان کے گھر میں تھے، محو آرام تھے، نیند میں تھے.
لہذا جو معراج ہے وہاں سے ہوا. کچھ نے کہا کہ نہیں عالم خواب میں ہوا. اگر یہ عالم خواب میں ہے تو پھر اس نبی کے خاصے کی اور معجزے کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. خواب تو آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں. بیٹھے ہم یہاں ہوتے ہیں، لیٹے وہاں ہوتے ہیں، پہنچے یورپ ہوتے ہیں، کوئی بیت اللہ کا عمرہ جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی طواف کر رہا ہوتا ہے، کوئی صفا مروہ کی سعی کر رہا ہوتا ہے. اچانک کوئی آ کے بلاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ میں پڑھا تو یہاں تھا. تو ایمان بنائیے کہ یہ عالم بیداری میں تھا، عالم خواب میں نہیں. یہ صرف سوچ نہیں تھی، یہ عملاً اور فعلاً تھا. اور یہ بھی ذہن میں لے آئیے کہ معراج اور اسراء ایک ہی سفر کا نام ہے، دو الگ الگ نہیں ہیں. کہتے ہیں جی قرآن نے صرف اسراء بتایا ہے، معراج نہیں، لہذا ہم نہیں مانتے کیونکہ ذکر حدیث میں ہے. اس بیچارے کو یہ علم ہی نہیں کہ حدیث بھی قرآن ہے. صاحب قرآن کا طرز ہے وہی ہے، قول ہے، فعل ہے، عمل ہے. جس زبان نے قرآن بتایا ہے اسی کا قول، فعل اور عمل آج تیرے تک پہنچا ہے. دونوں کی تلاوت ہو رہی ہے، دونوں کا حکم ہے کہ پڑھیے. نبی کی بیویوں کو حکم ملا کہ نبی کے گھر میں قرآن بھی پڑھنا ہے اور حکمت کی بھی تلاوت کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ چلتا تھا نبی کے گھر میں، حضور کے گھر میں. اور آپ بھی قرآن کی اور حدیث کی دونوں کی تلاوت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کہندے جی نہیں کری دی، کرتے ہیں. نماز شروع کرتے ہو سبحانک اللہم پڑھتے ہو کہ نہیں؟ تو حدیث سے ثابت ہے. اللہم باعد بینی پڑھ رہے ہو، تلاوت حدیث کی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ رہے ہو، قرآن سے ثابت ہے. آپ پڑھ رہے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن سے ثابت ہے. آپ پڑھ رہے ہو الحمدللہ رب العالمین، تلاوت ام الکتاب کی ہے. آپ پڑھ رہے ہو قل هو اللہ احد، تلاوت قرآن مجید کی ہے. رکوع میں کیا پڑھتے ہو؟ سبحان ربی العظیم. کیا پڑھ رہے ہو؟ حدیث ہے. کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہو، حدیث ہے. سجدے میں پڑھ رہے ہو، حدیث ہے. تشہد میں پڑھ رہے ہو، حدیث ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سے بھی ثابت ہے. لیکن اگر آپ کا دل نہیں مانتا تو قرآن میں کبھی جا کر کے مطالعہ کیجئے گا. 27ویں پارے میں سورہ نجم کا اللہ نے معراج کا تذکرہ یہاں کیا ہے. مگر عقیدہ ایمان کا حصہ بنا دیا. ذرا ترجمہ سن لیجئے، اس کے بعد جو بنے ہوئے غلط تصور ہیں دل کرے تو درست کر لیجئے گا. نہیں، ہم تو اپنے بچوں کو، اپنی نسل کو، اپنی آل کو، اپنی اولاد کو مخلص ہو کے جیسے اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں ویسے ہی وہ سبق دیتے ہیں جو کتاب ہدا میں رب نے 14 صدیاں پہلے اتارا تھا. اللہ کہتے ہیں یہ جواب ہے. جیسے محبوب کو مجنون کہا تو نون والقلم وما یسطرون کی 16 آیتیں جواب میں اتری تھی. یہاں تیرے رب نے 18 آیتیں اتاری ہیں. جب ابو جہل نے بولا تھا تیرے پیغمبر کا نا دماغ پتہ نہیں انہوں کی ہو گیا ہی، وہ کہندا میں اڑ گیا سا، وہ کہندا میں ایویں ہو گیا سی اتنی جلدی. اللہ نے جواب دیا، کہا والنجم اذا ہوا، مجھے ستارے کی قسم، جب وہ ٹوٹ کے مدار سے نکل کے آپ کو اڑتا ہوا گرتا ہوا نظر آتا ہے. ستارے گریں تو گر جائیں، جھڑیں تو جھڑ جائیں، نظام شمسی ٹوٹتا ہے، ٹوٹ جائے، برباد ہوتا ہے، ہو جائے، ساری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، منظر عام سے غائب ہو جائے. ما ضل صاحبکم وما غوا، جسے تم تانا دے رہے ہو تمہارا پیمبر اور ساتھی نہ بہکا ہے نہ بھٹکا ہے، وہ اپنے منظر پہ ہے. دماغ بھی درست، عقل بھی درست، فہم بھی درست، مزاج بھی درست، علم بھی صحیح، بات بھی صحیح، گفتار بھی صحیح، کردار بھی صحیح. ما ضل صاحبکم وما غوا، اور جو وہ تمہیں بتا رہا ہے نا وما ینطق عن الہوی،
ये अपना इमेज बनाने के लिए नहीं, ताकत और पावर दिखाने के लिए नहीं, या वो अपनी जात को बढ़ाने के लिए नहीं, या अपनी ख्वाहिशात को मुसल्लत करने के लिए नहीं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, एक एक लफ्ज जो बोल रहा है वो हमारी वही का बताया हुआ बोल रहा है। अब अल्लाह क्या कहते हैं, अल्लमहु शदीदुल कुवा, ये वही उसे सिखाने वाला वो फरिश्ता है जिसकी ताकतों का तुम अंदाजा नहीं कर सकते। शदीदुल कुवा, नुक्ते समझिएगा, इसी आयत में इसी सूरत में सारा कुछ है। कभी किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। महरूमी ये है कि हम सुनते बहुत हैं, पढ़ते नहीं हैं, मुताला नहीं है, स्टडी नहीं है, लिहाजा शुकूक व शुबहात हैं। अल्लाह फरमाते हैं हाँ अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा, इतना ताकतवर कि वही करने वाला मेरा फरिश्ता जब खड़ा हुआ, कायम हुआ और अपनी हैत में आया, वह बिल उफुकिल आला, वो आसमान और जमीन के आफाक को उसके पर जो है वो ढांपे हुए। महबूब ने जिब्रील अमीन की जियारत करी, मुलाकात करी, उनसे मिले, वही का तबादला ख्याल हुआ और पैगंबर ने बताया मैंने फरिश्ते को, जिब्रील अमीन को उसकी असली हालत और हैत में और परू में देखा। है बयान हदीस में कि नहीं, कुरान उसका तज़किरा कर रहा है। आगे अल्लाह फरमाते हैं वह बिल उफुकिल आला के बाद सुम्मा दना फतदल्ला, फिर वो महबूब के करीब हो गया, करीब हो गया और नीचे उतर आया उसके आला से। सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, फिर इतना करीब हुआ कि दरमियान में दो कौसों का या उससे कम का फासला रह गया। दो कौस समझते हैं? तो अड़े चू किसी ने कमान फड़ के तीर चलाया, किसी बुजुर्ग ने, हिजरत के कोई हमारे दोस्त बुजुर्ग साथी हों, नेजे भाले तो मैंने सुने हैं, फाले शाले बरछियां बुरछियां, कोई तीर तूर भी चलाने वाला सी। कदी कौस, कौस का जो साइज है, जैसे हमारा अल्लाह ने ये जो फट्टी का साइज है ना, कुरान गोद रखी है, हम गोद में रखते हैं तो थकते नहीं हैं। टेबल कभी ऊंची होती है, हमारे बाजू थक जाते हैं। अल्लाह ने फितरतन ये जो है ना आपकी कौस बनी हुई है, हमारे घुटनों तलक का जो एरिया है, इस हद तलक कौस को, कमान को रख के फिर तीर को खींच के चलाना बड़ा एक फितरती सा साइज होता है। समझ रहे हैं? महबूब के साथ जिब्रील अमीन, सही मुस्लिम में जो हदीस है, दो जानू होके बैठे थे, घुटने के साथ घुटने लगाए थे कि नहीं? फकाना काबा कौसैन औ अदना, दो कमाने, दो कौसें या उससे कुछ कम। फअौहा इला अब्दिही मा औहा, रब ने जो अपने बंदे की तरफ वही भेजी थी, फरिश्ते ने नबी को वो वही सुनाई। मा कज़बल फुआद मा रहा, मेराज पे ले जाया गया, जो दिखाया गया, जो वही सुनाई गई, जो आंख ने देखा है, दिल ने झुठलाया नहीं है। ये कहने के बाद अफतुमारूनहु अला मा यरा, वो आके तुम्हें बयान कर रहा है तो तुम्हें शक है कि जो बयान किया है वो उसने सही नहीं देखा। रब जवाब दे रहे हैं वलकद राहु नज़लतन उखरा, जिब्रील अमीन को एक और मर्तबा भी देखा जब वो नाजिल हुए थे। कब देखा, कैसे देखा? इंसानी शक्ल में, दहिया कल्बी की शक्ल में, जब मदीने में आके महबूब के आसपास बैठे। ये देखने का तज़किरा किसका है? ये कुर्बतों का तज़किरा किसका है? मोहम्मद रसूल सल्लम का, जिब्रील अमीन का। इंदा सिदरतुल मुंतहा, दूसरा मौका सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील के साथ मोहम्मद रसूल सल्लम की मुलाकात। इंदहा जन्नतुल मावा, वो है हमेशा की जन्नत, ठिकानों की जन्नत, पुख्ता ठिकाना। इद यग्श सिदरत मा यग्शा, पर्दों की भरमार और बेरी का आखिरी स्टॉप
उसको जिस चीज ने कवर करना था ढांपे हुई थी। मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, रब ने जो देखने का कहा है पैगंबर की आंख ने उसे छोड़ा नहीं, और जहां रब ने हद मुकर्रर कर दी है, हद से इस नजर ने बढ़ के देखा नहीं है। आंख के दो ही मसले होते हैं। किसी दे घर जाके जे पर्दे का माहौल है, नहीं कुछ वेखना तो नज़रां झुकियां रहन, उत्थे बंदा अख चुक ले तो भैड़ है। की ख्याल है? ते नज़रां नीवियां कीतियां ने मगर सामने तो नहीं वेखण दिया, कन अखियां नाल इधर उधर हिसाब लाउण दिया है, या ऐनकां पा के विचों कोई हिसाब लाउण दिया है। रब ने दोवां दी गवाही दे दी, मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, न टेढ़ी हुई है, न कहीं बहक के देखा है, न तुग़यानी में हद से बड़ी है। मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, लक़द रआ मिन आयात रब्बिहिल कुबरा, उसने तेरे रब की बड़ी निशानियां देखी। क्यों भाजी? अल्लाह इत्थे कह नहीं सी सकदे कि उन्होंने सानू वेख्या, असीं उन्होंने वेख्या, रज रज दीदार किया। एक कलमा पढ़ते सी, पता नहीं तुहाडे तक भी पहुंचया कि नहीं, तांदले वाली साइड तो एक नज़म चली सी, सारे नबियां ने कलमा पढ़िया, उन्होंने वो जिक्र किया। आदम अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़िया, जा जन्नत दे अंदर वड़िया, गलती हो गई, बाहर आए, मुआफ़ी मांगी। हुजूर के बारे में कहते हैं कि पाक नबी ने कलमा पढ़िया तो जा अरशां दे उत्ते चढ़िया। पूरी शरीयत में एक भी दलील ऐसी नहीं है कि महबूब अरश पे गए, अफलाक पे गए, दलाइल मौजूद। आसमानों से मां वरा गए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां सिदरतुल मुंतहा मां वरा, जन्नत जहन्नम रब की आयात और निशानियां, आंखों ने देखा दिल ने ठुकराया नहीं। जिब्रील का साथ पूछते गए, चलते गए, बताते गए, पूछते गए, लेकिन मेरे यार ने कहानी बना ली, मेरे में यह जरूरत नहीं है, मैं नहीं बना सकता। कहता है कि हुजूर अरशां ते सन ते उत्थे ना पैर तिलक पिया ते भज के किसी ने हथ फड़िया तो सोहणिया ने वेख्या तो पीर अब्दुल कादर जिलानी कित्थे बह के घड़ी है तो किन्नी चली है तो किन्नी बयान की गई है तो किन्नी वाह वाह हुई है। ये मेरे मुआशरे ने मुबारक, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं। आप यकीन करें, इस कुर्सी पे बैठ के इतना पसीना आ रहा है यार, क़यामत के दिन जहन्नम की आग के अंगारों की कुर्सी बना के दे, ओ खतीबे बेनसीब, ओ बदनसीब, तुझे नबी की विरासत दी थी, दीन दिया था, वही दी थी, किताब व सुन्नत से नवाजा था, तेरे पास झूठे किस्से कहानियां ही रह गई थी लोगों को मुतमईन करने के लिए। हक नहीं था, दलील नहीं थी, आयतें नहीं थी, रिवायतें नहीं थी, पैगंबर का बयान नहीं था। सही और सही रिवायतें जो मेराज को बयान कर रही हैं, तेरा उन पे इक्तिफा नहीं हुआ, तूने मन मर्जियां करके कहां से घड़ी। कहते हैं जी मेराज 6 मरहलों में हुआ। अल अमान वल हफीज, रब नूं नहीं सी पता, ये मौलवी साहब नूं पता लग गया। कहते जी जिहड़ी बुराक सी ना वो इन्नी तेज सी, फिर उस तो बाद जिहड़ी मेराज तां चढ़ी ना सीढ़ी लिफ्ट, उहदी इन्नी स्पीड सी। अगे फिर अल्लाह ने जिबरील नूं कहा भी हुण तूं दौड़, लिहाजा उन्होंने दौड़ाया सिदरतुल मुंतहा ते आके वो भी फिर अगू रफ रफ चली। ये अल्लाह भला करे गड्डियां चलाउण वालियां दा, ट्रांसपोर्ट पाउण वालियां दा। तेरे रब दे उस जुमले ते यकीन नहीं रहा, सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दी, तेरे रब ने करवाया है, जितना बताया है बरहक है, बुराक का साबित है बरहक है, मेराज का सीढ़ी का है बरहक है, लिफ्ट का हुक्म है, आर्डर है, लफ्ज मौजूद है बरहक है, मगर ये जो तू बीच में फिर आगे फिर आगे फिर आगे फिर आगे ते उत्थे कहंदा जी अरश दे आमने सामने बह के दीदार होए तो नाल होर भी मसले कढ़दा, वो भी विच जरा हल कर जावां। एक फलसफे दियां झड़ियां लाउण डिया सी वीरा ते कौम वाह वाह करन डई सी। कहंदा एक गल दसो, मूसा अलैहिस्सलाम जुत्ती ला के गए सी कि नहीं? कहंदे जी। कहंदे ते सोहणे? कहंदे जी जोड़ियां समेत। जोड़े अल्लाह कित्थे रहिंदा है? आखे अरश ते नबी दे जोड़े ते जुत्तियां कित्थे सी? कहंदे जी अरश ते। आ कुरान मजीद पिया ना, कित्थे पिया जी? ऐस फट्टी ते, टिशू दा डब्बा फट्टी ते, ऐनक फट्टी ते। अच्छा जी, यह डब्बा हुण कुरान नाल उच्चा है, यह वर्का अंदरों पेपर इहदे नाल उच्चा है,
ਇਹਦੀ शान वध गई। लेकिन खतीब दे जुमले सुनो, कहंदा जी रब अरश ते नबी दे जोड़े भी अरश ते दोनों बराबर हो गए। नबी के जोड़ों के ऊपर नबी के कदमैन, शान ज्यादा ऊंची उनकी। वाह 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 बल्ले। नबी के कदमों से ऊपर काबैन, दो टखने, टखनों के ऊपर साकैन, दो पिंडलियां, पिंडलियों के ऊपर ये रुकबतैन, दो घुटने, घुटनों से ऊपर शान मेरे नबी की फखजैन, आपकी राने, ऊपर मेरे नबी की जो है वो पेट और ये बतने अथर, ऊपर जो है मेरे नबी का सीना, मेरे नबी के ऊपर हाथ, मेरे पैगंबर का फिर जो है ऊपर जाके कतफैन, कंधे, कंधों के ऊपर क्या था? अली के कदमैन। नबी भी थले, अरश भी थले, रब भी थले, ते किथे जाके नबी दे उम्मती नूं ते अगे पढ़न दिया वाह वल अली उल अजीम के ए शान अली दा ते कौम बल्ले बल्ले कर रही है। ते माजरत करांगा कि ए सबक हुजूर ने नहीं पढ़ाया ते कुरान ने नहीं पढ़ाया। उन्ना के बयान करो जितनी हकीकत है। अगला मसला, महबूब ने रब को देखा है कि नहीं? इन चक्करों में पड़ जाएंगे। भाई तेरे रब ने उसूल दिया है, ला तुद्रिकुल अबसार। रब ने अपना दीदार कायनात का सबसे बड़ा सीक्रेट रखा है, पता जे? ते सरप्राइज, दो चीज़ां, एक सीक्रेट ते एक सरप्राइज। सरप्राइज दा मज़ा उदों ही आउंदा जदों वो सीक्रेट भी रवे ते उदों ही खुले जदों खोलण दा टाइम होवे। ते जे पहले खुल गया तो सरप्राइज नहीं जे रहिंदा। जन्नत का सबसे बड़ा तोहफा, जन्नतियों को जन्नत दे के, सारी नेमतें दे के, अलाटमेंट दे के, मौत के गले पे छुरी चला के, मुस्तकिल जिंदगियां दे के, आसाइश रिहाइश दे के, अल्लाह महबूब के सारे दीदार कुर्बते हमसायगी अता करके फिर पूछेंगे जन्नतियों कुछ चाहिए? जन्नती कहणगे इस तू अगे हो की सकदा है, रह की गया? फिर अल्लाह कहणगे वाला दई ना मजीद, साडे कोल हाले कुछ होर भी है। फिर दीदार दा आगाज यौम युकशफ अन साक। तेरे रब ने दीदार का स्टार्ट कहां से लेना है? पिंडली को नंगा करके, शौके दीदार बढ़ाते हुए। और जब रब ने अपने चेहरे का दीदार करवाना है, यह है सरप्राइज, जन्नत का सबसे बड़ा तोहफा, तेरे रब की रजा। लो आज मैं तुमसे राजी हूं, फिर कभी नाराज नहीं होगा। मूसा अलैहि सलाम तरले नहीं पांदे रहे ते अल्लाह ही कहंदे रहे लन तरा नहीं। उसूल ये दसिया कि जेड़ियां अखां मैं बनाईयां ने जब तक जन्नत च नहीं जानियां मैं तुहानूं नहीं विखाना। ते हुजूर नूं पुछया तुसीं गए से जे अल्लाह नूं वेखिया? ते हुजूर ने की कहा? होर मैं उत्थे लैण की गया सा, अल्लाह नूं ही तो वेखण गया सा। तो जे मैं वो भी नहीं सी वेखना तो फिर की? कहंदे ने नूर अन्ना आरा, तेरे रब दे इतने पर्दे ने नूर दे कि अगर वो खोल दिते जान ते दुनिया सड़ जाए, कायनात उड़ जाए। उन पर्दों में रखा है नूर अन्नारा, वो रोशनी ही रोशनी, वो सरापा है नूर, मैं कैसे देख सकता था? कहंदा नहीं, सोने ने सही नहीं आख्या। फैसलाबाद च एक ना मदीना टाउन है, सूसा रोड, फैजान मदीना रोड ते मछली वालियां काफ़ी सारियां शॉप्स ने। ते एक दोस्त उत्थे खड़ा ते मैं गड्डी च सी, मैं लाइटां चलाइयां सी, सर्च लाइटां भी आन सन। मैं उन्होंने वेखण दिया ते वाहवा देर झट तो बाद ना मैं उन्होंने पूछया, मैं क्या वीरिया इन्नी देर हो गई है मेरे अल मूँह करके खड़ा है तो यार तेनों इन्नी भी नहीं आई कि अगे होके मिल ही लईए? कहंदा हुजूर तुसीं मैनूं वेखण डए हो, लाइटां तुसीं मारन डए हो, मैनूं ते अखां च लाइटां पैण डईआं, मैनूं तो कख नहीं नज़र आउण डिआ अंदर की है। जे गल समझनी चाहो तो रब दी ते मिसाल ही आला है, सोने दी मिसालां कुछ और होंदियां ने। नूर अन्ना आरा, ये तेरे मेरी होंडे की गाड़ी की मोटरसाइकिल की लाइट नहीं है, ये ट्रेन की किसी फ्लाइट की लाइट नहीं है, ये तेरे रब का नूर है। नूर अन्ना आरा, फैसले कर दिए गए हजरात। हाँ, जो देखा था, जो बताया था, तेरे रब की आयात, इसरा का मौका आया, ले नूरियाहू, क्या दिखाना चाह रहे थे? इत्थे अल्लाह कह नहीं सी सकते सुबहान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू।
असी उत्थे खड़े आ इसलिए कि असी अपना आप विखाउणा सी। लेकिन अल्लाह क्या कह रहे हैं, अपनी निशानियां। सूरह नजम में मेराज का तस्करा, अल्लाह कहते हैं रब की निशानियां देखी। हाँ हाँ, हम हकीकत है मानेंगे, रब की निशानियां देखी। उसके बाद आखिरी गुफ्तगू का हिस्सा, मेरे वीरियो इन्नी क गल मन लो कि सोहणिया ने उत्थे जाके जो किया है ना, सही हदीसां च मौजूद है, वह हक जे। आपने कहा सी कि मैं एक खतीब नूं वेखिया है, आंदरां दे गिरद घूमण डिया, तो फिर मैं पूछया कि कौन है। इसे तरह किसी का सिर पाड़िया जा रहा सी, किसी दियां वराछां पाड़ियां जा रही सी। असी सुन के कहने अच्छा, सारी रात जागने। हालांकि हुजूर मेराज की रात बाद में जिंदगी में कितनी मर्तबा आई, अगर 10 में हुआ है तो फिर मेरे महबूब ने 3 साल मक्का में, 10 साल जो है वो मदीना में, 13 सालों में किसी एक रात भी जागे नहीं, दिन का रोजा आपसे साबित नहीं, रखा नहीं। मगर आज के इंसान को जगाया भी जा रहा, फजीलत बताई जा रही, झूठ सुनाया जा रहा, दिन को जो है वो दीन बना के रोजा रखवाया जा रहा। रोजा रख के भी जो रात को इसने बयान सुना था, पूरी मार्केट में उसी के खिलाफ काम फिर कर रहा है। बताया गया मिलावट वालों का वहां क्या हो रहा है, बताया गया आलम बेअमल की हालत क्या हो रही है, बताया गया कि जानियों से सलूक क्या हो रहा है, बताया गया कि जहन्नम में मैंने सबसे ज्यादा जनानियां देखी हैं। सारी रात बीबियां ने जलसा सुनिया, शबे मेराज सुनी है, ते सवेरे जाके फड्डा फिर होई है। डर पैदा नहीं होया कि अल्लाह तू डर जाइए। ते हुजूर नूं बीबियां ने पूछ लिया कि सोहणिओ जहन्नम च सानू वेख्या ते है जे, ये नहीं आख्या अच्छा बंदे से हो ना मर्दां दी साइड लई जे। कह लगी हुजूर वो गलती दस दो जिस वजह तू जहन्नम च नहीं, ताकि असी बच सकीए। और हुजूर ने सच्ची जुबान से क्या कहा था, 3 ही बातें हैं। वो 1400 साल पहले भी वो 3 थी, आज भी वही 3 है। तकफुरना बिल्लाह, माड़ी जी मुसीबत आ जाए तो अल्लाह नूं सिद्धियां हो जांदियां ने। पता नहीं असी की रब दा गवाया है, सारे जमाने दे मरज मेरे ही घर आ गए ना, सारियां तकलीफां मेरे ते ही, सारियां मुश्किलां मेरे ते, रिश्तेदार सारे भैड़े मेरे। व तकफुरनल अशीर, ते जेड़ा जिंदगी दा साथी है ते पूरी जिंदगी इन्हां ते ला दिंदा है, ओदियां भी नशुक्रियां। सारी जिंदगी किसी भी बेगम तू सब गोल कुछ ना फोल, किते बहा के पुछ लो 4 सहेलियां च एक ही होऊ, मेरा बंदा तो इदां दा अंतरा नखतरा, पता नहीं कित्थों मेरे प्यो ने किहड़े वेले इदां दी शहजादी उहदे अगे ला के टोरती। बंदा तो मेरी छोटी भैन दा है, मियाँ तो जेड़ा ना जी वो मेरे नाल वाली हमसाई दा, अपना कदी नहीं दिसना। तीसरा जुर्म व तकफुरनल इहसान, पूरी जिंदगी शहद चटाया हो मगर जहर उगलेगी, पूरी जिंदगी दूध पिलाया हो मगर जो है वो बोलेगी। अगर सारी जिंदगी आसाइशें दी हैं, एक गलती हो जाए पूरी जिंदगी की नेकी मुंह पे मार के कहेगी मैं तो तेरे च कदी कोई चंगा काम वेख्या ही नहीं, भैड़ ही वेखी है जदों दी आई है। एदे ते अमल नहीं होना, ये जे मेराज दा सबक। खतीब झूठ ना बोले, ये जे मेराज दा सबक। पैगंबर के वारिस की जुबान पे गुफ्तार कुछ और, किरदार कुछ और, ये है मेराज का सबक। मिलावटें, झूठे, धोखे, फराड, सिनाकारियां, बदकारियां, एदा कोई सबक सीख के मेराज ते कोई बदलीए अपने आप नूं तो गल बननी जे। इस दफा कुदरती गल है कि मेराज भी उस महीने च ही पै गया जिहदे च